Assalamu alaikum students. Hope you all are doing very well. Today we would be taking start of our next chapter, that is development and aging. Prior to this we did reproduction one chapter, and now we will take start of development and aging. Let's see. As development and aging, so first we have to define development and then aging, but we would be defining development in terms of embryology or developmental biology, क्योंकि हम एम्ब्रियो के developmental stages को डिटेल में पढ़ेंगे. Beside this हम aging को भी define करते हैं. Let's see first what is development. In developmental biology, embryonic development, because we over here would be focusing on embryonic development. In developmental biology, embryonic development, also known as embryogenesis, that is the formation of embryo, it's the development of an animal embryo, right? What is a development when we define in developmental biology? So that is the what embryogenesis or the development of animal embryo, because our concern over here is with the developmental stages of embryo, right? Then aging. What is aging? Aging can be defined as the time related deterioration. Deterioration mean decline की तरफ जो जाए, ठीक है, जो downfall की तरफ जाए. Okay, so aging, it can be defined as the time related deterioration, degeneration, decline की तरफ of the physical function. यानी physical function जब decline की तरफ चले जाएं तो we call that as aging. फिजिकल फंक्शन जब डाउनफॉल की तरफ चले जाएं, डिटेरियोरेशन मीन डाउनफॉल या डिक्लाइन, राइट, जब स्लो डाउन हो, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ जाएं, राइट. एक्सप्लेनेशन. The progressive changes, the progressive mean which are moving towards the progress, the progressive changes in which a fertilized egg, it is converted into a fetus, which is an embryo, which in turn then develop into adult stage during lifetime, it is called as development. Mean के progressive changes, progressive changes जो हम कहते हैं कि developmental steps को complete करें, right. Progressive, it is we can say opposite to that of the degenerative. So what's the situation? All the progressive changes in which a fertilized egg or zygote, it is converted into a fetus or embryo, which in then develop into adult stage during the lifetime, is called as what? Development. Are all those successive changes which are occurring from fertilized egg to an, we can say, egg up to the formation of fetus and fetus into adult. अब दूसरे अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें कि वो सारे सक्सेसिव चेंजेस या प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है, जो किसी फर्टिलाइज एग को पहले एक फीटस में कन्वर्ट करे और फिर फीटस से एडल्ट स्टेज तक अगर हम ले उसमें जितने भी प्रोग्रेसिव चेंजेस है या पॉजिटिव चेंजेस है या सक्सेसिव चेंजेस हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल चेंजेस या डेवलपमेंट. Developmental changes, they are positive changes. Again over here it is mentioned during which simple form means single cell embryo, which is called as zygote. Zygote is basically a single cell embryo. It is converted into a complex form, that is fetus. Fetus, which is basically advanced embryonic stage, right? Now what is embryology then? एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम जनरली भी डिफाइन करना चाहें ना, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो टिल द फीटस एंड देन टिल द एडल्ट स्टेज. और बिसाइड दिस अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करना चाहे, सेकेंड डेफिनेशन प्रेजेंट करना चाहे, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टिल हैचिंग. हैचिंग किस केस में होगा? ओविपैरस यानी एग लाइंग एनिमल, वो एनिमल जो एग्स ले करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स को ले ले, फॉर एग्जांपल हम रेप्टाइल्स को ले ले, विच आर ओविपैरस, दे आर एग लाइंग एनिमल. तो अगर हम एम्ब्रियोलॉजी को डिफाइन करना चाहें ना, तो फर्टिलाइजेशन से लेके हैचिंग तक, यानी एग जब हैच हो जाए तब तक, वी कॉल दैट एज व्हाट? एम्ब्रियोलॉजी. उसके तमाम डिफरेंट स्टेप को स्टडी करना, दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी.
और बिसाइड दिस अगर हम दूसरे केस में ले लें कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस फ्रॉम फर्टिलाइज एग टिल बर्थ इन केस ऑफ viviparous animal, that is called as embryology. viviparous कौन से हैं? which give birth to young one. जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, they give birth to young one, right? okay. then after that embryonic development, जी दोबारा हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे. The progressive changes which are undergone by an organism in embryonic period before it acquires या attain its adult form, that is collectively called as embryonic development. Right. हम बार बार कहते हैं कि starting from fertilized egg till we can say fetus and then till the adult stage. Embryonic period फिर क्या है? The whole period during embryonic development, it is called as embryonic period. Then stages. Following are the stages of embryonic development, that is cleavage. Then second one is blastocyst formation. Third one is implantation of the early embryo. Fourth one is gastrulation. Then beside this, neurulation. And then organogenesis. When we talk about the cleavage, so cleavage is a cell division, right? इसको हम डिटेल में करेंगे. Blastocyst formation, which is one of the embryonic stages, embryonic stage. Implantation mean how the embryo is getting embedded into the uterus and developing roots or placenta formation. Gastrulation, that is three-layered embryo formation. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. That is ectoderm, endoderm and mesoderm. Neurulation, that is the development of nervous system. Organogenesis, the rest of organ development, right? इसको हम one by one करेंगे. जी स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें ना, यू कैन सी दिस इज द ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है. इट इज कमिंग इन द फिलोपियन ट्यूब में जब आ जाता है तो यू कैन सी ओवर हियर it is getting fertilized, and then the fertilized egg, which is called as zygote, it is having two pronuclei. These nuclei, they will fuse together and will give rise to zygote. It is basically undergoing division then. So the zygote, it will undergo division, and this division is called as cleavage. So as a result, it is divided into two cell. Then later on the division, it continue and it is giving rise to 4-cell stage, then 8-cell stage, and then so on. We are saying then it is also giving rise to a compact mass of cell, which is called as morula, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे. and after that, ये जो आप for example इस मोरूला के इर्द गिर्द लेयर देख रहे हैं, that is called as what? That is called as zona pellucida. Zona pellucida जो है वो ब्रेक होना शुरू कर देगा, and the embryo, it will hatch, and as a result, now this embryo, it will also start to implant itself. The implantation, it will develop by the formation of root, which you can observe over here. हम कहते हैं कि formation of placenta, it will start over here. जी इन तमाम स्टेप को हम डिटेल में करते हैं one by one. Let's see. First one was cleavage. Early cleavage and blastocyst formation. Cleavage first. The division of zygote through mitosis in the initial stages, it is called as cleavage. Cleavage in zygote, it starts somewhat after 36 hours of fertilization. और जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि when the fertilized egg or zygote, it start to divide, so the process, it is called as cleavage. इसको हम cleavage कहते हैं, ठीक है, right? And as a result, जब ये zygote 2 सेल में डिवाइड हो जाएं, तो जो रिजल्टेंट सेल्स हैं, we do call them as blastomeres. You can observe these are the blastomere. पहले suppose 2 blastomere है, again they will undergo cleavage like this, so we get 4-cell stage. Still the cleavage, it will continue, and we are getting then 8-cell stage. You can see over here. तो जितने भी हमारे पास रिजल्टेंट सेल्स बनते हैं, जिस तरह यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर लें, अराउंड mass of cell, a solid ball of cell which is obtained, that is also having cells, and all these cells, they are called as blastomere, right? Okay, human being का जो cleavage है या division है, that is holoblastic.
होलोब्लास्टिक का मतलब ये कि जब क्लीवेज फरो या क्लीवेज स्टार्ट होता है तो वो लाइन बिल्कुल मुकम्मल होता है और हमारे पास कंप्लीट 2 सेल्स बन जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। ह्यूमन के क्लीवेज को हम इक्वल भी कहते हैं, इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। इक्वल का मतलब ये कि जब क्लीवेज हो जाए या डिवीजन हो जाए तो एज अ रिजल्ट जो सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, बोथ आर ऑफ इक्वल साइज। जिस तरह जब हम बात करते हैं ना फ्रॉग्स में क्लीवेज की, फ्रॉग्स के फर्टिलाइज एग में क्लीवेज की, तो उनमें क्लीवेज जो है वो अनइक्वल है, क्योंकि उसमें जो ब्लास्टोमेर्स बनेंगे तो कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। जो छोटे ब्लास्टोमेर्स होंगे उनको हम माइक्रोमेर्स कहते हैं और जो बड़े होंगे उनको मेगामेर्स कहते हैं, इसलिए उनमें अनइक्वल क्लीवेज है। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग में क्लीवेज की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल एंड दैट इज होलोब्लास्टिक, राइट, के कंप्लीट डिवीजन है और जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑफ इक्वल साइज, राइट। Okay, then the blastomere, the cells which are formed during cleavage process, that's called as blastomere. The zygote undergo first cleavage, if we see over here, and produce 2 identical cells which are called blastomeres. The cleavage it continue and produce 4 cells and then 8 cell and so on. यानी डिवीजन कंटिन्यू रहती है and we are getting what? We are getting the blastomeres, right? Next per morula. What is morula? It is another embryonic stage. Definition: a loose collection of cells that form a berry-shaped cluster of 16 or more cells that is called as morula, which you can observe over here. Yes, आप देख सकते हैं कि 8 cell stage के बाद हमारे पास this is a solid ball of cell, loosely arranged ball of cell, ठीक है। And you can see over here this is called as morula, right? अच्छा, morula it is formed when zygote undergoes few cleavages. Morula will move through oviduct and continues its journey towards the uterus. बिल्कुल हमने फर्स्ट डायग्राम में ऑब्जर्व भी किया कि हमारे पास इफ़ यू ऑब्जर्व ओवर हियर 8 सेल स्टेज के बाद जो मोरूला बन जाता है, इसमें जब फर्दर क्लेवेजेस होती हैं और मोरूला बन जाता है तो इट विल जस्ट मेक इट्स जर्नी टूवर्ड्स द यूट्रस टू गेट इम्प्लांटेड, राइट। Now after that compaction, what is compaction? By the day 6 after fertilization, the embryo contain 100 or more cells. These cells trigger or stimulate connection among themselves by the process which is called as compaction. Due to the process of compaction, these cells they are tightly held with one another. For example, यहाँ पे हमने कहा कि the loose mass of cell that is basically called as what? That is called as morula. लेकिन what are they saying? यहाँ पे आप observe भी कर ले कि a loose collection of cell that form a berry shaped structure that is called as morula. लेकिन ये loose mass of cell, now the cells they will just held together tightly. cells अब आपस में एक दूसरे को हेल्ड करेंगे, टाइटली हेल्ड करेंगे, एंड वी कॉल दिस प्रोसेस एक एज व्हाट? कंपैक्शन, यानी दे आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर स्ट्रांगली एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपैक्शन। यानी पहले जो लूज मास ऑफ सेल था तो अब थोड़ा टाइट मास ऑफ सेल हो जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टूला स्टेज है सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हम क्यों इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं? ह्यूमन के ब्लास्टूला को क्यों ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं? बिकॉज इफ यू सी ओवर हियर, ये दिस इज बेसिकली वन ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। मोरूला जो हमारे पास सॉलिड बॉल ऑफ सेल था ना, और उसके बाद कंपैक्शन हो गई, तो व्हाट आर दे सेइंग कि फिर उसके बाद वो जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल है विच यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, जी ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल है, इसमें अंदर कोई कैविटी नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक जाएगा तो व्हाट इट विल डू? इट विल डेवलप एन इंटरनल कैविटी। ये अंदर एक कैविटी डेवलप कर लेगा जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील, जी। जिस तरह पहले ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल था ना, तो इसने अंदर एक कैविटी डेवलप कर ली, सेल ने खुद को ऐसे अरेंज कर लिया विच यू कैन सी
कि the outer cells you can see the blue one, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के. The outer cells they are called as trophoblast, ठीक है, this is the trophoblast, or we are saying these cells they are called as the inner cell mass. So the inner cell mass, it is insisted by the trophoblast cell. That's why it is called as blastocyst. और ये जो space आपको नजर आ रही है, it is filled with fluid then, ठीक है. तो इसका मतलब है कि ये, अच्छा, इस inner cell mass को हम embryo proper भी कहते हैं. इनर सेल मास को हम एम्ब्रियो प्रॉपर भी कहते हैं. इससे पूरे का पूरा एम्ब्रियो बन जाता है along with certain extra embryonic membrane, जबकि ट्रोफोब्लास्ट विल गिव राइज टू कोरियन, जो कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. इसको भी हम साइड बाय साइड डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें है एमनियन, कोरियन, यॉक सैक एंड एलेंटॉइज. यॉक सैक ना होने के बराबर है, ठीक है, लेकिन बाकी 3 अगर हम देखें चले along with traces of yolk sac, तो इसमें inner cell mass would be giving rise to amnion, allantois and yolk sac, लेकिन chorion it would be formed basically from the trophoblast cell जी. और इनर सेल मास से इन 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अलावा पूरे का पूरा एम्ब्रियो भी बनेगा, इसलिए इसको हम एम्ब्रियो प्रॉपर भी कहते हैं इस इनर सेल मास को. अच्छा, इसके अलावा आपको एक और आउटर मेम्ब्रेन या कवरिंग नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं जोना पिलूसिडा. जोना पिलूसिडा इट इज़ बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है. और लेट्स सी व्हाट हैपन टू दिस कॉम्पैक्टेड एम्ब्रियो, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इन मोरूला द सेल्स दे आर लूजली अरेंज्ड, देन दे विल अंडरगो द फिनोमिनन ऑफ कॉम्पैक्शन. So this compacted embryo of 100 or more cell, it's now termed as blastocyst. Blastocyst, it is surrounded by zona pellucida, right? Which slowly breaks. Zona pellucida क्या था? मैंने पहले भी आपसे कहा कि that is glycoprotein in nature. It's a layer which is made up of glycoprotein, right? Which slowly breaks down, releasing the blastocyst, which is known as hatching. कि जब एम्ब्रियो इससे हैच कर जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट जी. इनर सेल मास को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट. नाउ इनर सेल मास, अ क्लस्टर ऑफ 20 to 30 rounded cells which are located on the inner side of the trophoblast, जबकि ट्रोफोब्लास्ट लेयर इट्स which is lying to basically trophoblast layer and it is called inner cell mass. First one को कह रहे हैं also it is called as inner cell mass. Why? Because it is lying inner to the trophoblast, ठीक है. ये inner cell mass जो है it is lying inner to the trophoblast. और ये जो trophoblast आप यहाँ पे देख रही हैं, this is just highlights, ये कोई headline नहीं है. This is only the highlights कि a small cluster of 20 to 30 round cells which are located on the inner side of the trophoblast layer. ये trophoblast को मैंने सिर्फ highlight किया है. It is called as inner cell mass and that is basically what? That is also called as embryoblast. Right. Trophoblast, a single layer of large flattened cells which are surrounding the inner cell mass and fluid is called as trophoblast. अब ये trophoblast की अपनी headline है, keep in mind, ठीक है. तो हम कहते हैं कि inner cell mass है collection of 20 to 30 cells के which are lying inside the trophoblast, ठीक है. It is also known as what? Embryoblast. Or we are saying what is the trophoblast cell then? A single layer of large flattened cells which are surrounding the inner cell mass and fluid जी. इनर सेल मास को भी सराउंड करते हैं और इस फ्लूइड को भी सराउंड करते हैं एंड दिस इज द सिंगल लेयर सेल और इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, राइट. ओके, देन as the zona pellucida it breaks down the trophoblast and hence what developing embryo they are exposed to the mother immune system, right. To protect the embryo, the trophoblast displays L selection. L selection mean
व्हाट इज एल सिलेक्शन, यानी हम कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एडहेजन मॉलिक्यूल, जिसको हम CD62L भी कहते हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन इट्स सरफेस सून आफ्टर हैचिंग, के जैसे एम्ब्रियो हैच हो जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस एल सिलेक्शन या एल सिलेक्टिन का एक ग्रुप है विच आर एडहेजन मॉलिक्यूल और दैट इज CD62L. L selection, it has the ability to adhere with the coming leukocyte in order to protect the embryo from their attack. Definitely, जब embryo मदर के immune system को expose हो जाएगा तो definitely इसको protect भी करना है. Several other factors which are having immunosuppressive effects, they are also released in order to protect itself from initial immune defense of mother. हम कहते हैं कि जी अब ट्रोफोब्लास्ट की ये करेक्टरिस्टिक है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे कि जो मदर के इनिशियल इम्यून सिस्टम को जब ये एक्सपोज होगा तो एम्ब्रियो को उससे प्रोटेक्ट करे. राइट. ट्रोफोब्लास्ट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन. बिल्कुल, क्योंकि हम अगर आगे जाके पढ़ेंगे तो दैट वुड बी the major part which is participation which is having participation which is participating in placenta formation. Placenta is basically a connection between fetus and mother. जो developing fetus है उसके दरमियान और mother के दरमियान connection है placenta, और it is partially made up of embryo part. embryo के कौन से part से? It means के trophoblast के part से, trophoblast which will gives rise to one of the extra embryonic membrane and that is called as chorion. और maternal part से भी, partially maternal से बना होता है और partially जो है वो fetal part से बना होता है. Okay. The inner cell mass form embryonic disc, क्योंकि ये डिस्क लाइक होता है, दैट्स वाई विच फॉर्म द एम्ब्रियो प्रॉपर. एम्ब्रियो प्रॉपर का मतलब है कि जिससे मेजर एम्ब्रियो के पार्ट्स बनेंगे सारे के सारे, along with certain extra embryonic membrane as well. All the extra embryonic membrane, for example amnion, allantois and yolk sac, all are derivatives of inner cell mass. जबकि सिर्फ कोरियन जो कि ये भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मीन के बिल्कुल जो आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसको हम कोरियन कहते हैं एंड द मोस्ट इनर वन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एमनियन. एमनियन वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को डायरेक्टली कवर करता है और कोरियन जो है वो सबसे आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है and it is basically the derivative of trophoblast. यानी कोरियन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से बना होता है और बाकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो एम्ब्रियो प्रॉपर या इनर सेल मास से बनी होती हैं. ना सिर्फ ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बल्कि पूरे का पूरा एम्ब्रियो भी. राइट. Implantation of early embryo. Implantation means that how it will develop roots now. The attachment of embryo to the uterine wall or endometrium is called as implantation of embryo. यहाँ पे हम थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे. अगर हम बिल्कुल इनिशियल डायग्राम की तरफ जाएं. राइट. अब आप देख सकते हैं ना, हमने कहा कि जी मोरूला के बाद जब स्टेज आता है ब्लास्टोसिस्ट तो जोना पिलूसिडा रप्चर हो जाता है, एम्ब्रियो हैच करता है और नाउ इट विल डेवलप रूट्स. ठीक है, तो यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ रूट इन द यूट्राइन वॉल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. और यू कैन सी ओवर हियर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. जी ओके, एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं. ओके, सॉरी. Implantation, it occur mostly on the day 7 after ovulation. It ranges basically from 6 to 12 days. The extra embryonic membranes, they are formed in the first 2 to 3 weeks. कौन से हैं? For example, amnion, chorion, allantois और yolk sac. ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. इसमें भी yolk sac जो है वो ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है बहुत. Which include amnion,
yolk sac which is very negligible in human, allantois and chorion. तीनों जो है वो किस चीज से बने हैं? फर्स्ट थ्री एम्ब्रियो प्रॉपर से, लेकिन सिर्फ कोरियन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से बना है, which will participate in the placenta formation as well. The amnion, it develops from the epiblast when cells of the epiblast arrange themselves into a transparent membranous sac. अच्छा, जब हम डिवीजन और रीडिवीजन की बात करते हैं ना, और हमने यहाँ पे ये भी कहा कि द एम्ब्रियोनिक डिस्क की हम बात कर रहे हैं कि ये जो इनर सेल मास है तो ये तो फ्लैटन हो जाएगा, और फ्लैटन होने की वजह से ये डिस्क लाइक शेप डेवलप कर लेता है। इसलिए इस एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं या एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहते हैं। जी, इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा फ्लैटन स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे एपीब्लास्ट जो आउटर सेल है दे आर कॉल्ड एज एपीब्लास्ट सेल, और कुछ लोअर सेल भी है जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो ऊपर के हैं और हाइपोब्लास्ट जो लोअर है। यानी हम जो बात कर रहे थे इनर सेल मास की, तो इनर सेल मास खुद को ऐसे रीअरेंज कर लेगा, फ्लैटन स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसमें भी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी। यहाँ पे जनरली अगर हम देखें कि जी मेजरली एक एपीब्लास्ट है और एक हाइपोब्लास्ट है, तो व्हाट आर दे सेइंग कि ये जो एमनियन जो है ना, इट इज फॉर्म बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ विच सेल्स। यहाँ पे हमने कहा दैट इज बेसिकली फ्रॉम द epiblast. It is developed from the epiblast when cells of epiblast rearrange themselves into transparent membrane, right? Epiblast cells, they are derivatives of inner cell mass, ठीक है? The cavity inside the amnion, it is called amniotic cavity, which is filled with amniotic fluid. जी, यहाँ पे कहते हैं कि amnion जो कि एक extra embryonic membrane है, और हमने बार बार ये कहा कि ये भी डिराइव होता है इनर सेल मास से, और इनर सेल मास के जो सेल एपीब्लास्ट में रीअरेंज है, ठीक है? तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव राइज टू एमनियन, और ये एमनियन सैक या मेम्ब्रेन जो है एम्ब्रियो को कवर कर लेगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और उस सैक के अंदर फ्लूइड भी होगा। उस फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। लेटर ऑन the embryonic disc or embryo proper, it curves to form a tubular body, and the developing amnion also curves within the same way. So the amniotic sac, it will cover the embryo from all side. जी, from all side, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह from all side। जी ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ना तो हम कहेंगे कि ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो कि राउंड अबाउट ट्यूबुलर इन शेप है ना, और यहाँ पे इन्होंने बात भी की कि इट डेवलप अ ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है? बिसाइड दिस इफ यू ऑब्जर्व, तो ये डिफरेंट लाइंस यहाँ पे सैक्स आप देख रही हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज एमनियन, ठीक है? यू कैन ऑब्जर्व ना, एमनियन है, और बिल्कुल जो आउटर वन है दैट इज कॉल्ड एज कोरियन, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज कोरियन। और फिर you can see this is the allantois, you can see this is the allantois, and this is the yolk sac। जी, एक चीज अगर आप ऑब्जर्व कर ले इस स्ट्रक्चर में, तो एमनियन, इफ यू सी एमनियन, इट इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो इन ऑल साइड डायरेक्टली। बच्चे देखे ना अगर आप, तो एम्ब्रियो के बाद जो फर्स्ट मेम्ब्रेन आता है वो एमनियन का है। एमनियन इस पूरे एम्ब्रियो को तमाम साइड से सराउंड करता है और कंप्लीट है सिवाय इस सेंट्रल पॉइंट के। यू कैन सी ओवर हियर, इस पॉइंट के अलावा अगर आप देखें, ये एमनियन पूरे का पूरा इस एम्ब्रियो को सराउंड करता है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। अब एम्ब्रियो और इस मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है ना, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड, और ये एमनियोटिक फ्लूइड भी इस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, इसके अलावा योक सैक और एलेंटॉइस की जब आप देखें बात करें, तो दे आर गिविंग राइज टू व्हाट, इम्बिलिकल कॉर्ड। हम कहते हैं ना कि
जब ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस की हम बात करते हैं तो दे आर हैविंग अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एज वेल विच इज़ कॉल्ड एज इम्बिलिकल कॉर्ड, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली शो करता है कि इस पॉइंट पे कभी एम्बिलिकल कॉर्ड था, और जैसे यंग वन की बर्थ होती है तो इम्बिलिकल कॉर्ड को काट के क्लिप अप करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इम्बिलिकल कॉर्ड में कौन कौन से टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर कि योग सैक है और एलेंटॉइज हैं। अच्छा, जो बिल्कुल बाहर की कवरिंग है या मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं इस पिंक कलर में, ये जिसको हम कहते हैं कोरियन। कोरियन इज द आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड एमनियन इज द इनर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा इसलिए कहते हैं कि एम्ब्रियो के बाहर है, और एमनियन प्लस एम्ब्रियो के दरमियान जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, अब कोरियन में अगर आप देखें जो बिल्कुल आउटर वन है, इसने कुछ ब्रांचेस भी डेवलप की हैं और इसको कहा है फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो इसका मतलब है कि इफ दिस इज अ कनेक्शन या प्लेसेंटा है और यहाँ पे मेटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, मेटरनल पोर्शन में क्या आ जाता है, दैट इज इंडोमेट्रियम। ठीक है, जो कि यूट्रस का पार्ट है। तो इंडोमेट्रियम और कोरियन आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करते हैं। ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, एंड वी जस्ट कॉल इट एज व्हाट, प्लेसेंटा। तो यू कैन सी के प्लेसेंटा की फॉर्मेशन जो है, फॉर दैट वेरी पर्पस द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच पार्टिसिपेटिंग, दैट इज द कोरियन, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं, लेट्स सी और क्या है जी। लेटर ऑन द एम्ब्रियोनिक डिस्क इट कर्व्स टू फॉर्म अ ट्यूबुलर बॉडी। हमने देखा कि ट्यूबुलर बॉडी थी उस एम्ब्रियो की। द डेवलपिंग एमनियन आल्सो कर्व्स विद इट इन द सेम वे। द एमनियोटिक सैक विल कवर द एम्ब्रियो फ्रॉम ऑल द साइड। द ओनली ब्रोकन पॉइंट इट इज वेयर द एम्बिलिकल कॉर्ड एंटर्स द एम्ब्रियो। जी, जिसमें मैंने आपको शो किया था कि सिर्फ इस पॉइंट के सिर्फ इस पॉइंट के अलावा बाकी अगर आप देखें ना, तो ये इसको यानी एमनियन इसको सराउंड करती हैं, जहां पे एम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा सिवाय उस पॉइंट के। ऑल दिस स्टेजेस दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क के ट्यूबुलर हो जाए, एमनियन एंड एम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन एक्सेट्रा अकर लेटर देन गैस्ट्रुलेशन एंड न्यूरुलेशन स्टेजेस। ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि जी एम्ब्रियो एलोंगेट हो जाएगा, तो ये बेसिकली गैस्ट्रुलेशन और न्यूरुलेशन के बाद होती हैं, एंड दे आकर ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, डेफिनेटली जब ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज हम जब जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। जी, सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन की तरफ आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 or 3 लेयर्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। ओके, यहां तक अगर आप रिकॉल करें ना, तो हमने कितनी स्टेजेस पढ़ी, एक क्लेविज पढ़ा, दूसरा हमने मोरूला पढ़ा, और तीसरा हमने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमने इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो को थोड़ा सा डिस्कस किया कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो में जब इम्प्लांटेशन होती हैं तो साइड बाय साइड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी डेवलप होना शुरू कर जाती हैं, और कैसे रूट्स की डेवलपमेंट होती हैं, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती हैं, और कौन सा पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करता है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए, राइट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 or 3 लेयर्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। द वर्ड गैस्ट्रुलेशन का मतलब है मूविंग या द मूवमेंट ऑफ सेल। इसमें गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में सेल्स खुद को रीअरेंज कर लेते हैं और 3 जर्म लेयर्ड एम्ब्रियो बना लेते हैं, इसलिए इसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इन केस ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रूला, वो गैस्ट्रूला जो डिप्लोब्लास्टिक है उसके 2 मेजर लेयर हैं, ठीक है। तो द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वाल इन ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, 3 लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रूला 3 लेयर्ड, दैट इज एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म, दे आर ओवर देयर। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है? अगर हम देख लें सीलियंट्रेट्स की, कि जिसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और मिडल लेयर जो है दैट वाज मीजोग्लिया,
लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रूला की, कि जिसकी 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तो लेट्स सी, हम तो ट्रिप्लोब्लास्टिक को ही काउंट में लेंगे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनिमल की डेवलपमेंटल स्टेजेस को पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन: ड्यूरिंग वीक 3 the two-layered embryo, that is epiblast and hypoblast, transform into 3-layered embryo and will gives rise to ectoderm, mesoderm and endoderm। अच्छा, यानी इनिशियली जब ब्लास्टोडिस्क या एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाएगा तो उसके 2 लेयर होंगे, एक अपर जिसको हम एपिब्लास्ट कहेंगे और एक लोअर जिसको हम हाइपोब्लास्ट कहेंगे। लेकिन इन्हीं 2 लेयर में जब सेल्स की रीअरेंजमेंट होगी ना तो उससे 3 लेयर बन जाएंगे और उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑल दीज 3 मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड प्राइमरी जर्म लेयर। बिल्कुल, प्राइमरी जर्म लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्म लाइन है हर एक लेयर, उससे स्पेशल ऑर्गन बनेंगे, स्पेशल सिस्टम बनेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है। The process of gastrulation is accompanied by cellular rearrangement and migration। क्योंकि इसमें gastrulation के process में cells की rearrangement और movement involved है, that's why it has been given the name of gastrulation, right? अच्छा, जब gastrulation का process start हो गया ना तो उसकी first जो है indication that would be primitive streak formation। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है? हम कहते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर विद रेज्ड एजेस। ठीक है, और ये डोर्सल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो के डिस्क के ऊपर डेवलप होगा। जी, हम जरा डायग्राम में अगर इसको देखें, अच्छा यहाँ पे या यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जी, अब अगर मैं कहूँ ना कि ये एम्ब्रियो का डिस्क है, जिस तरह एक बिस्किट है, उस बिस्किट को मैं उठा के रख लेती हूँ और ऊपर से देखती हूँ। ठीक है, एक बिस्किट को या डिस्क को मैं ऊपर से देख रही हूं तो उसके सरफेस के ऊपर एक लाइन सपोज मैं लगा लूं विद रेज एजेस, तो यू कैन सी प्रिमिटिव स्ट्रीक भी जस्ट वी कैन से इंडिकेशन ऑफ लाइन है विद रेज्ड एजेस। जी, एक सेक्शन इसमें बन गया है विद रेज्ड एजेस। और नाउ यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, दिस इज बेसिकली द प्रिमिटिव स्ट्रीक, यू कैन सी, राइट। अच्छा, और पढ़ लेते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है। The process of gastrulation, it begins, yes, it is indicated when a groove-like structure with raised edges called primitive streak appear on the dorsal surface of the embryo disc and establishes the longitudinal axis of embryo। बिल्कुल longitudinally ये move करता है। देख लेते हैं जी, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन शुरू हुई है और ये आगे जाता जाता है, राइट, यूं करके जाता है, राइट। ओके, अब हम कहेंगे कि जी ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो बन गया, इसकी मिसाल ऐसे हैं कि कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और हम नाइफ उठा के उसमें एक लाइन खींचे और उसके सरफेस में एक क्रैक पड़ जाए। अब उस क्रैक के थ्रू क्या होगा? फर्स्ट वन, हम कहते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन ही इंडिकेशन है गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस की। इसी स्ट्रीक के थ्रू मूवमेंट ऑफ सेल होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल होगी, और जो 2 मेजर हम कहते हैं लेयर है ना, दैट इज एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जब हम बात कर रहे थे, इसमें तो नहीं, पिछले स्ट्रक्चर में ज्यादा क्लियर था, यस, कि जब हम एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की बात करते हैं तो इन्हीं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान सेल की रीअरेंजमेंट होगी और इससे 3 लेयर बनेंगे जिसको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहेंगे। यहाँ पे भी आप देखें ना, एपीब्लास्ट सेल दे माइग्रेट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक, यानी प्रिमिटिव स्ट्रीक एक क्रैक है, एक लाइन है, एक कट है जिसके थ्रू सेल मूव करेंगे। डेफिनेटिव या एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म सेल दे डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट, मीजोडर्म दे विल स्प्रेड बिटवीन द एंडो एंड एक्टो। जिसका अगर आप देखें ना कि ये एपीब्लास्ट थे, ये हाइपोब्लास्ट थे, तो एपीब्लास्ट में से कुछ जो मीजोडर्मल सेल प्रेजेंट होंगे वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू माइग्रेट करेंगे, स्प्रेड होंगे
कुछ एंडोडर्मल सेल जो है वो हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर लेंगे और मीजोडर्मल सेल मीडियली जो है प्रेजेंट होंगे एक्टो और एंडो के दरमियान। फर्स्ट वन, एंडोडर्म फॉर्मेशन। The surface cell yani epiblast of the embryonic disc then migrate medially across other cells and enter the primitive streak. Then they displace the hypoblast cell and form the innermost layer which is called as the endoderm. G. They are saying कि एपीब्लास्ट में कुछ जो एंडोडर्मल सेल प्रेजेंट थे ना वो माइग्रेट करेंगे इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू, ये जो कट लगा है इसी कट के थ्रू ये अंदर जाएंगे, ठीक है, और खुद को रीअरेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, दैट इज द एंडोडर्म। यू कैन सी कि एंडोडर्म के सेल कैसे माइग्रेट कर रहे हैं और खुद को रीअरेंज कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये माइग्रेशन किसके थ्रू है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन इज द इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। इसी के थ्रू तो फिर मूवमेंट ऑफ सेल शुरू हो जाएगी। Mesoderm formation, those cells that basically follow push on both sides laterally between the epiblast and hypoblast form the upper and lower surface of the mesoderm. The mesoderm cells just beneath the primitive streak aggregate medially and form a rod of mesodermal cell which is called the notochord, and it's the first axial support of embryo, and this time the embryo it's round about 2 millimeter long and the notochord it's mesodermal in origin, right? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एपीब्लास्ट में मौजूद सेल थे ना वो माइग्रेट करके इन्होंने एंडोडर्म बना लिया और मेसोडर्म भी बन गया जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव स्ट्रीक के करीब प्रेजेंट थे, उन्होंने मेसोडर्म बना लिया। यहाँ पे आप मेसोडर्म देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके 3 मेजर लेयर है, दैट इज व्हाट, एक्टो, मीजो और एंडो। अब ये इस मीजो के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि वो मीजोडर्मल सेल। अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज द एक्टोडर्म जो कि आउटर मोस्ट अभी आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एंडो एंड दिस इज द मीजो, मीजो जो दरमियान में प्रेजेंट है। तो दे आर सेइंग के इस मेसोडर्मल सेल के वो जो बिल्कुल प्रिमिटिव स्ट्रीक यहाँ पे था ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बिल्कुल साथ प्रेजेंट है। तो यू कैन सी ओवर हियर दे विल गिव्स राइज टू फ्यूचर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जिसको हम कहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे बाद में वर्टेब्रल कॉलम बनेगा हमारा, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि ये नोटोकॉर्ड दिस इज बेसिकली द एक्सियल सपोर्ट ऑफ द एम्ब्रियो। तो मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल आ जाती हैं वो सारी की सारी जर्म लेयर है, वो डिटरमिन करेगी कि फ्यूचर में से कौन से ऑर्गन बनेंगे। लेकिन जनरली अगर हम देखें ना तो एक्टोडर्म से मेजरली इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी स्किन अलॉन्ग विद इट्स डेरिवेटिव, और इसके अलावा सेंट्रल हमारा जो नर्वस सिस्टम है इंक्लूडिंग सेंट्रल पेरिफेरल वट एवर दैट इज, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो और इंटेगुमेंट्री सिस्टम एक्टोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म से हमारा जो स्केलेटल मसल है, सर्कुलेटरी है, सर्कुलेटरी में भी ब्लड सर्कुलेटरी है, लिम्फेटिक एक्सेट्रा है, और हमारे जो मेजर मसल है ये बनते हैं। और इसके अलावा जब हम इनर की बात करते हैं एंडोडर्म की, तो मेजरली जो गट है यानी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, ओके। अब हम एक्टोडर्म की फॉर्मेशन की बात करेंगे। द सेल्स दैट रिमेन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो डिस्क दे फॉर्म द एक्टोडर्म। इसका मतलब है कि एपीब्लास्ट में डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट थे, कौन कौन से, एक्टोडर्मल भी, मेसोडर्मल भी और एंडोडर्मल भी। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक या कट जो लग गया उसके थ्रू अंदर सेल माइग्रेट कर गए, जो बिल्कुल अंदर माइग्रेट कर गए, तो उसको हमने नाम दिया किसका, एंडोडर्म का। यानी जो पहले एपीब्लास्ट था उसमें डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट थे, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू वो अंदर चले गए, कुछ सेल जो अंदर चले गए जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर बना लिया तो वो एंडोडर्म थे। फिर उसके बाद जो एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के दरमियान रीअरेंज हुए
तो वो मेसोडर्मल सेल थे, और जो एपिब्लास्ट में रह गए तो वो एक्टोडर्मल सेल है। राइट राइट यहां तक अब हमने स्टडी किया कि कैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है, यानी कैसे 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन होती है। हमने कहा कि जी गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान ये होती हैं, और गैस्ट्रुलेशन का फर्स्ट इंडिकेशन वाज द प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन। प्रिमिटिव स्ट्रीक वाज जस्ट लाइक अ कट, जिस तरह हम एक कट लगाते हैं ना, दैट वाज बेसिकली अ ग्रूव विद रेज्ड एजेस जो एक्सटेंड कर रहा था लॉन्गिट्यूडनली इन द एम्ब्रियो। राइट और देन थ्रू दैट द माइग्रेशन ऑफ सेल आकर उसके थ्रू सेल माइग्रेट कर गए। पहले शुरू में जब एम्ब्रियो डिस्क के फॉर्म में था तो उसकी 2 मेजर लेयर थी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट में डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट थे, उससे मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल माइग्रेट करके अंदर चले गए, और जो रह गए सरफेस के ऊपर एपीब्लास्ट में, तो उसको हमने एक्टोडर्म का नाम दिया। राइट ओके नाउ न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन या नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन जो अभी हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज कॉल्ड एज न्यूरुलेशन। Explanation. When we talk about the explanation, neurulation is a major event in the embryogenesis during which certain ectodermal cell differentiate to form the neural tube, which is basically future brain and spinal cord. This process is induced by chemical signals from the notochord, which is mesodermal in origin. हमने पढ़ा कि नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। नोटोकॉर्ड से ही बाद में हमारा वर्टेब्रल कॉलम बनता है, और नोटोकॉर्ड जो है दैट इज एक्टिंग एज अ एक्सियल फिलामेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जो मेन सपोर्ट है। नाउ न्यूरुलेशन के जो प्रोसेस के स्टेजेस हैं, लेट्स सी। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, फिर न्यूरल ग्रूव, फिर फोल्ड, फिर ट्यूब, और फिर नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे। अच्छा, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली, हमने कहा था कि एम्ब्रियो का जो आउटर लेयर है दैट इज एक्टोडर्म। दोबारा जरा हम डायग्राम की तरफ चले जाते हैं। जी हम कह रहे थे ना कि दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म, और फिर अंदर एंडोडर्म होगा। तो एक्टोडर्म का वो पोर्शन जो नोटोकॉर्ड के बिल्कुल अबव है, ठीक है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज एक्टोडर्म, but which will gives rise to nervous system. तो let's see first of all these cells, ठीक है, these cells of the ectoderm which are lying above the notochord, notochord जो mesoderm से बना था, the neural plate they will gives rise, they will rearrange, they will become flattened, ठीक है, those ectodermal cell which are lying above the notochord they will become flattened and will gives rise to a plate-like structure which is called as neural plate. Neural plate, it will undergo a depression which will call as neural groove. Neural groove बना लेगी. The raised edges of the neural groove, it will gives rise to fold-like structure which are called as neural fold. These fold will then fuse together. ये दोनों फोल्ड आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यू कैन सी, जो कि इसमें कर गए हैं, एंड देन ये दोनों एजेस आपस में मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन इससे कट ऑफ हो जाएगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, यू कैन सी। लेकिन डायमीटर वाइज अगर आप एक ट्यूब को देखें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इससे फिर डिटैच कर जाएगा और ये 2 एजेस आपस में मिल जाएंगी। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। दोबारा जरा स्टेप्स को समझे कि वो एक्टोडर्मल सेल जो नोटोकॉर्ड के बिल्कुल अबव है, नोटोकॉर्ड जो कि मेसोडर्म से बना है, और हमें पता है कि एक्टोडर्म के नीचे मेसोडर्मल सेल है और मेसोडर्मल सेल के नीचे एंडोडर्मल सेल है। तो नोटोकॉर्ड के अबव जो एक्टोडर्मल सेल है, दे विल अंडरगो सर्टेन चेंजेस, they would become flattened and will give rise to a plate-like structure. The plate-like structure, it get a little bit convolutions and will develop a groove. Then the edges of that groove, these are called as fold. So these are called as neural fold. These fold 1 and 2, you can see these will fuse together. ये आपस में करीब आ जाएंगे, fuse हो जाएंगे.
तो एज अ रिजल्ट ये और ये वाला एज फिर आपस में जुड़ जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इससे डिटैच होके क्या बना लेगा, न्यूरल ट्यूब बना लेगा। दिस इज नाउ अ न्यूरल ट्यूब, जो कि आपको डायमीटर वाइज सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। और कुछ सेल्स यहाँ पे क्रश हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल, राइट जी। स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल प्लेट। व्हेन 3-layered embryo is formed, then some of the ectodermal cells they thicken and form a plate-like structure which is called neural plate. Yes, जो हमने डिस्कस किया। Formation of neural groove, neural plate folds inwards forming an inner groove-like structure. Then formation of neural fold, the neural groove further deepens and form prominent folds which are called as neural fold. Then formation of neural tube. By the day 22, the superior margins of the neural fold they fuse and form a tube-like structure which is called neural tube, which get separates and become a proper tube-like structure. फिर ये tube जो है ना आगे extend करेगा and it will gives rise to central nervous system. The anterior end of the neural tube it become brain, while the posterior it become the spinal cord. Yes. एंटीरियर जो है वो ब्रेन बन जाएगा और उसके बिहाइंड जो है दैट वुड बिकम द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा फर्दर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द एसोसिएटेड न्यूरल क्रेस्ट सेल। जब हमने यहाँ पे बेटा अगर आप ऑब्जर्व कर ले, दीज आर द न्यूरल क्रेस्ट सेल। ये कैसे बन गए कि जब दो फोल्ड आपस में फ्यूज करेंगे ना तो ये मार्जिन इसके टूट जाएंगे। इसके टूटने, इसके मार्जिन या बॉर्डर पे जहां पे आपको ये फोल्ड नजर आ रहे हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल भी इससे डिटैच हो जाएंगे। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल फिर किस चीज को गिव राइज करेंगे, लेट्स सी। ये हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल है, जबकि न्यूरल ट्यूब इससे सेपरेट होके प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिलहाल बनाएगा। सो व्हाट आर दे सेइंग कि the associated neural crest cell migrate widely to give rise to spinal nerve, cranial nerve, sympathetic ganglia and other associated nerve to medulla of the adrenal gland, pigment cells of the skin and also gives rise to some even connective tissue. तो इसके भी diverse function है, you can see. Formation of vesicle. By the end of the first month, 3 primary brain vesicle that is fore, mid and hind they are obvious या prominent, ठीक है। Formation of hemisphere. By the end of second month all the brain flexors they are evident. The cerebral hemisphere it covers top of the brain stem. Brain stem is basically the lower part of the brain to which the cerebral hemisphere they are attached. They will basically cover the top of the brain stem and brain waves they can be recorded. जिस तरह हम कहते हैं ना हार्ट बीट रिकॉर्ड की जा सकती है एक एम्ब्रियो की, तो द ब्रेन वेव कैन बी रिकॉर्डेड बाय EEG, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। EEG इट्स बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द स्कैल्प। स्कैल्प के ऊपर जिस तरह हम फॉर एग्जांपल हार्ट बीट को या ECG के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट बीट को स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर यानी चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड रख के हम हार्ट की एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट जब हम स्कैल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड रख के ब्रेन की वेव्स को स्टडी कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, द रिकॉर्डेड वेव फॉर्म दे रिफ्लेक्ट द कॉर्टिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ब्रेन की क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व कर ले तो दिस इज द प्रोजेंसेफेलॉन। जब हमने कहा ना कि 3 फोल्ड्स भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं जो किसकी होती हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन की होती हैं, तो दिस इज द प्रोजेंसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन होगा, दिस इज द मीजेंसेफेलॉन जो मिड ब्रेन होगा एंड दिस इज द रोम्बेंसेफेलॉन जो हाइंड ब्रेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि जी न्यूरलेशन के प्रोसेस में जब न्यूरल ट्यूब बनता है और न्यूरल क्रिस्टल बन जाते हैं
तो वो कैसे नर्वस सिस्टम को गिव राइज करते हैं? दे आर सेइंग के सपोज ये ट्यूब पहले स्ट्रेट होता है ना, यूं बिल्कुल स्ट्रेट, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्यूब जो है इट इज गिविंग राइज टू व्हाट, टू ब्रेन, और उसके कौन कौन से पार्ट को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड को, और फिर उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है इट इज गिविंग राइज टू व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे इसकी कन्वोल्यूशन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सपोज प्रोजेंसिफिलॉन है, मीजेंसिफिलॉन है, रोम्बेंसिफिलॉन है, और उसके बाद यू कैन ऑब्जर्व कि दिस इज आल्सो गिविंग राइज टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो यू कैन सी कि ये हमारे पास 3 वेसिकल है प्रोमिनेंट जी। ओके आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? आज के लेक्चर में हमने इनिशियल स्टेप्स का स्टार्ट लिया कि व्हाट इज बेसिकली embryology and how the different initial steps they occur while in the fertilized egg। तो उसकी जब हम बात करते हैं that was cleavage, blastocyst formation, implantation, gastrulation, neurulation। जी न्यूरुलेशन तक हमने स्टडी किया जो कि बहुत ही प्राइमरी स्टेप्स थे इसके। इंशाल्लाह वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनोजेनेसिस एज वेल। क्लीवेज को हमने डिस्क्राइब किया कि दैट इज़ द माइटोटिक डिवीजन ह्यूमन के केस में, दैट इज़ कंप्लीट एंड यानी जिसको हम होलोब्लास्टिक एंड इक्वल भी कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन को हमने स्टडी किया, इम्प्लांटेशन या रूट की डेवलपमेंट इन द यूट्रस, बिसाइड दिस गैस्ट्रुलेशन which was basically first indicated by primitive streak formation, and then the movement या migration of mesodermal and endodermal cell वो हमने डिस्कस किया। फिर न्यूरुलेशन दैट इज न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के जब न्यूरल ट्यूब बन गया एक्टोडर्मल सेल से तो उसका जो इनिशियल पार्ट था ट्यूब का इट गिव्स राइज टू 3 मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और जो पोस्टीरियर पोर्शन था दैट गिव्स राइज टू स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा न्यूरल क्रिस्टल सेल से जिन जिन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती हैं वो हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया उसको भी। होप स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी दिस lecture or hear this lecture and understand it. If you get any point which is just confusing you, we would be inshallah doing that. Again, we would be taking that in detail. Till that, Allah Hafiz. Thank you.